ladies and gentlemen, on the News Hour tonight, I would like to begin the show with some exclusive visuals of the upcoming Ram Mandir in Ayodhya. Times Now was the only channel inside the Mandir compound that is under construction. A landmark Supreme Court verdict paved the way for Mandir Nirman that devotees across the globe have been waiting for. I'm using these visuals to explain the importance of the Mandir for the crores of Ram Bhakts who have waited patiently to see Ram Lalla's honor being restored. But unfortunately, there are forces within the country who want to keep communal embers alive. Despite a due judicial process paving the way for Ram Mandir, the likes of Asaduddin Owaisi are using the Babri card to incite the minority community. Another provocative statement from the Hyderabad Member of Parliament coming earlier in the day in the build-up to the Uttar Pradesh elections. There is a pattern to these statements by Mr. Owaisi. His has been unambiguous stand about his nature of politics, drilling a sense of victimhood into the psyche of the minority community. Owaisi has used convenient arguments to build his vote bank. Owaisi couldn't even digest the Supreme Court verdict of the construction of Ram Mandir, calling it a victory of faith over facts. And in days to build up to the Bhumi Pujan at Ram Mandir, Owaisi used the Babri card to call it an immortal memorial in the mind of Muslims. Why should Owaisi juxtapose Babri demolition always when Astha of Ram Mandir is in focus? Even when the alleged conspirators in the Babri demolition case were let off, Owaisi questioned the court verdict. And let's now listen into what Asaduddin Owaisi said. देखिए, सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया, और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता. And that brings me to the legitimate question on the News Hour tonight. How is Babri symbolism secular? That's the question and the debate. Babri martyrdom debate, and that's the hashtag, the debate on the other side. You're watching the News Hour at 9, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. And joining me tonight, Dr. Rakesh Sinha, Member of Parliament of Rajya Sabha from the BJP, Shehzad Poonawala, lawyer, Ratan Sharda, author, Sajjan Singh, member of the BSP Legal Cell, Shoaib Jamai, President of the Indian Muslim Foundation. But my first question goes to Aseem Waqar, National Spokesperson of Mr. Owaisi's party, AIMIM. Aseem Waqar Sahab, अगर राम मंदिर के बारे में कुछ कह दिया जाए तो आप कहते हैं बीजेपी ये तो इलेक्शन से पहले अपना तुष्टीकरण कर रही है, अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये राम की बात करेंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे. लेकिन ओवैसी जी अपना यूपी इलेक्शन शुरू करने से पहले और उसकी कैंपेनिंग शुरू करने से पहले अगर ऐसा बाबरी मस्जिद के बारे में कह दें तो ये तो सेक्युलरिज्म होगा. क्यों? देखिए, अपने मजहब की बात करने का अधिकार आपको, और मुझे मेरे मजहब की बात करने का अधिकार. आप किसको क्या कहते हैं हम तो उस पर एतराज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा अधिकार छीन भी नहीं सकती मैडम. ना योगी जी हमारा अधिकार छीन सकते हैं, ना मोदी जी हमारा अधिकार छीन सकते. इस्लाम में कहा गया कि एक बार जहां मस्जिद बन गई वो ता क़यामत मस्जिद रहती है. ये हमारा अधिकार है, इसको हमसे कोई नहीं छीन पाएगा. ना टाइम्स नाउ छीन पाएगा, ना उत्तर प्रदेश सरकार छीन पाएगी, ना भारत की सरकार छीन पाएगी. ये हमारा निजी अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, जाति अधिकार है. और यही सच है. हमारे धर्म में जो है वो हम बता रहे हैं आपसे. आपके धर्म में है जो आप बताइए, हम सुनेंगे आपकी बात. तो असीम वकार जी, अगर हिंदू धर्म और राम भक्त आकर ये कहें कि हमारे धर्म में भी ये लिखा है कि एक बार जहां मंदिर था
वहां मस्जिद बन ही नहीं सकती, अगर बनी थी तो उसको एक ना एक दिन टूटना ही था और वहां मंदिर ही बनेगा। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे आप हिटलर हो गए, तो आप कहेंगे कि आप माइनॉरिटीज की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, तो आप हम पर उंगलियां उठाएंगे कि तो हम तो धर्म निरपेक्ष है ही नहीं, तब तो आप बहुत सारी चीजें कहेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया बात आपने कह दी। नहीं, बहुत अच्छी बात। आपके इस सवाल का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अभी आपसे पहले मैं एक चैनल पर था, उस पर निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता जी बैठे थे, वो नाराज हो गए मुझ पर। तो मैंने कहा आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? आपको नाराज होना था सर्वोच्च न्यायालय में, जहां आपके दावे को खारिज कर दिया न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं निर्मोही अखाड़े के पास और राम मंदिर न्याय समिति के पास कि वहां पर कोई मंदिर था या वो जमीन ही नहीं। ये निर्मोही अखाड़े का कोई सवाल नहीं है यहाँ सवाल है कि जब उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि यहाँ मंदिर बनेगा तो फिर ये बात सेटल हो गई, मंदिर का निर्माण वहां शुरू हो गया। लेकिन डॉक्टर राकेश सिन्हा, इनको फिर बाबरी मस्जिद के जख्म मैडम एक मिनट, मैडम आप मेरी बात काट रही हैं। मैडम मेरी बात काट दी आपने। मैं गुजारिश करूंगा एक लाइन आ जाने दीजिए। राकेश भाई से फिर पूछ लीजिएगा, राकेश सिन्हा साहब से। न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूरे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो उनका फैसला आया, उसमें उन्होंने लिखा कि इस बात का हिंदू पक्ष की तरफ से सबूत ही नहीं दे पाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उन्होंने कहा यह कोई प्रूफ नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर हुआ। और नाविका कुमार कह रही हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। उच्चतम न्यायालय कह रहा है इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब आप ये बता दीजिए कि नाविका कुमार जी, आपको आपकी बात देश मानेगा या उच्चतम न्यायालय? नहीं, देश तो आपकी बात मान रहा है, कई सालों से मान रहा है। राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। आप बताइए ना। You know, after listening to Asim Bakar and his leader Owaisi, one can come to the conclusion that they are undermining the importance of culture in this country. They are undermining the importance of Supreme Court. They are undermining the importance of the Constitution of India. What they say, what Islam say is the supreme for the Indian Muslims. Means they are the first obedient to Islam, then the Constitution, then the Supreme Court, then the culture of the country. It can't happen in the country like India, which follows the secular norms and secular ethics. As far as Owaisi's party is concerned, they have their roots in they carry the legacy of anti-nationalism. Their very founder, Qasim Rajvi, was released from jail under Nehruvian regime with a condition that he would migrate to Pakistan. Before leaving Pakistan, he handed over his party to grandfather of Owaisi Sahab. They must, the people of India and the millions of viewers of Times Now must know the roots of, as you know the roots of the RSS, roots of the Communist Party, roots of the Congress Party. You must know a leader who is making news, who is a frequent visitor in the TV studios and making and considering himself one of the biggest leader of the Muslim community, has the root, the legacy of anti-nationalism. Why his founder was arrested, Qasim Rajvi? Can Owaisi and Mr. Bakar answer that? Why he was forced to migrate Pakistan? And they have not changed their principle and ideology. As far as Ayodhya is concerned, they are going just to create a polarization in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh has a history of communal riots, and under Adityanath Yogi ji and Narendra Modi ji, we tried to convince the people of India it is development which counts most. And Sabka Saath, Sabka Vishwas, as Prime Minister said. And this they are trying to defy, because without dividing the people, without the polarization of the people, Owaisi can't increase his 0.09% votes to 2 to 3% votes. He wants that his party should become a national party. That's why he's fielding candidates everywhere. His voting percentage is 0.9%. Now he's trying to galvanize the Muslim opinion. There was no Babri mosque, it was a Ram temple, and don't misguide Mr. Bakar on TV channel that Supreme Court has said something that there was no temple. Who said there was no temple? It was destroyed by Babur. Babur was an aggressor. And any Muslim who accepts aggressor as his forefather, not only defying the constitution but also defying the cultural contours of the India. And you cannot be a good citizen of India without accepting our cultural legacy. And Navika ji, I'm just quoting one book, then I will finish myself. You know,
Acharya J.B. Kripalani, who was once a Congress president, a great socialist leader who wrote a book, Minorities in India, it was published in 1948. He said that the tragedy of Indian Muslims is that they don't regard Veda, Ramayana, Mahabharata and Upanishad as their part of cultural tradition. And once you abandon all these things, India will be left with nothing. What Indian culture means. So I appeal to Owaisi, kindly don't divide the people. If you want to survive politics, you survive on the basis of development, on the basis of policies and politics. And the policies, you can criticize the government on any front, on the basis, on the secular parameters. But when you are criticizing the government on the basis of the communal parameters, the way he attacked the Prime Minister, when Prime Minister went to Ayodhya, and you see the Narendra Modi ji's speech there, it was an inclusive speech. He interpreted Bhagwan Ram in a very inclusive, as Bhagwan Ram is inclusive. Without Ram, India cannot be imagined. Any citizen of India, whether he is a Muslim, Christian, Sikh or Parsi or Jew, can't imagine that he is an Indian without disobeying Ram or considering that Ram is not the part of his culture. नहीं कल्चर की बात नहीं है, ये उस जमीन की बात है और जमीन पर आपने सईद असीम वकार कहा कि वहां तो मंदिर था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब मिसलीड करना अगर आपकी आदत और फितरत है तो ये आपकी अपनी डिसीजन है, लेकिन कोर्ट ने कहा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देख के कि बाबरी मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ स्ट्रक्चर हुज आर्किटेक्चर वाज डिस्टिंक्टली इंडिजिनस एंड नॉन इस्लामिक। कहा कि नहीं कहा? रतन शारदा जी, Mr. Asim Wakar wants to mislead this debate once again and reopen the entire issue of the Babri Masjid versus Ram Mandir, because today, if they start this entire debate all over again after decades and decades and decades of court arguments, what are they doing? They are doing politicization of the faith on the eve of the UP elections. And if the BJP says something like this, 2019 में ओवैसी साहब ने खुद कहा था कि बीजेपी को खाली एक ही चीज आता है, हिंदू मुस्लिम करना, and this is not allowed under the code of the election commission. Ratan Sharda, very convenient facts twisted the way they like on the day they like. See, I call MIM as the modern day Muslim League of erstwhile Pakistan and obviously as the new age Jinnah because of the way he divides people. Now coming to the main point, if he says there is no temple under the mosque was not demolished, not made to over a demolished temple, I would humbly say that Hindus are so clever that they built a temple under the mosque, very cleverly underground. They are such great engineering geniuses. So that's how the temple came under the mosque, which Supreme Court has identified, he rightly pointed out. Secondly, he says that mazhab is above everything. He says अगर Supreme Court ने बोला तो फिर मानेंगे नहीं, बाबरी बात ही रहेगी, हमेशा रहेगी. So they are also not allowing the Supreme Court judgment to be the final judgment. Thirdly, when he says that I will keep on calling Ayodhya as Faizabad, it shows that the person does not recognize the integrity of this nation. He is a supremacist who believes in identifying with the invaders, the Mughals, by calling a holy place of Hindus for thousands of years as Faizabad, to put the stone on their chest and divide his head, Chati par moong dalna. Sinha ji has already talked about the atrocities of Razakars on Hindus and Dalits. I will talk of modern times. These people who talk of having alliance with OBC, Dalits and all that, may I ask them whether any of them has ever condemned? I'll just talk of 4 incidents, not many incidents, there are many. 22nd March, Dalits were beaten up because the Muslim girl married a Dalit. The marriage was stopped. 22nd May 2021, Muslim mobs attacked Mahadaris in Purnia. Nobody spoke a word. There was riot, Agjani. 13 June 2020, Azamgarh, 16 Muslims were picked up for attacking Dalits. 7 June 2021, Nurpur, Dalit wedding was stopped by Muslims. I am just giving 3 or 4 examples because I don't want to raise the temper of the people. Did anyone from MI ever condemn it? Because all this talk of meme and deen is only a charade to gain vote, and they just want to divide Hindu society and kids. Mother has widely never support the Dalits. We will not go back to Mandal, who left Pakistan as a diligent man, saying that Hindus and Dalits are not safe in Pakistan. He came back to India as a broken man. That is the first example. Continues the same thing is happening.
मस्जिद को दिखा नहीं सकते। सऊदी अरेबिया, scores of masjids, including historical mosques, have been removed. In Pakistan, they have been removed to make new flyovers. Whom is teaching us? Are we blind to the history? Don't we read history? Don't we read newspaper? वकार साहब पत्थर के नीचे रहते होंगे 6वीं शताब्दी के, हम नहीं रहते। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूं, असीम वकार साहब अगेन मिसलीड कर रहे हैं। कोर्ट के सामने फेथ का या मंदिर डिक्लेयर करने का सवाल ही नहीं था। सवाल यह था कि ये लैंड किसकी है, और उन्होंने लैंड जिसकी है उसको दिया, वहां राम मंदिर बनाने के लिए दिया। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था दैट ऑल 4 ऑफ द जनसखीज, द बायोग्राफीज ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु, गुरु नानक, स्टेट अनएम्बिगुअसली एंड इन डिटेल दैट गुरु नानक जी मेड pilgrimage to Ayodhya and offered prayers in the Ram temple in 1510 to 11 AD. The court also mentioned that a group of Nihang Sikhs performed puja in the mosque in 1857. तो राम टेम्पल था 1510 में और 1857 में वहां मॉस्क आ गई थी। मैं पूछना चाहती हूं शोएब जमाई से, शोएब जमाई, अगर असदुद्दीन ओवैसी इशू रेज कर दें, कुरेद दें, फिर से सारे नासूर बना दे, जितने भी जख्म हैं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की जितनी भी स्ट्रगल रही है, उसको आज दोबारा अगर खोल दें तो वो तो सेक्युलर कहलाएंगे। उन्हें कोई दोष नहीं है क्योंकि वो तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और उनके पास सेक्युलरिज्म का बिल्ला जो है वो छाती पर लगा हुआ है। लेकिन ये अगर बीजेपी से कोई कह दे राम मंदिर की बात या भव्य राम मंदिर बनेगा तो बोलेंगे आप कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है, काम तो इन्होंने कोई किया नहीं, बस राम मंदिर के नाम पर वोट लेने आ गए। शोएब जमाई, अलग रूल्स होंगे क्या हर किसी के लिए? Yes, Navika, thank you first of all for inviting me. Navika, you might not subscribe to my views, but for me and for my generations to come, the land at Faizabad will always be the site where Babri Masjid was demolished. And we will remember that in that way. And history will remember that. This is my right. We all remember that. See, we have all witnessed that. Okay. We have all witnessed the demolition, and it wasn't good. Yes. Again, he identifies yes, Mughals. Yes, exactly. Thank you. Thank you. Ratan Sarda, this is very indisciplinary thing. Don't act like a. नहीं, आप मुगलों को अपना बताएंगे पूरा अपने पुराने इतिहास को भूल जाएंगे। आपको 1992 याद रहता है, पर ये याद नहीं रहता कि बाबर से पहले क्या था वहां पर। वो तो कभी याद करने की आप कोशिश नहीं करते ना। मैं बताता हूँ। चलिए, आपने इस पे नहीं मांगा जो मंदिरों पे बनी है। मैं आपको इतिहास याद दिला देता हूँ। पहली बात तो उस मस्जिद को बाबर ने नहीं बनाया। 30,000 मस्जिदों का हिसाब बता देता हूँ। जाइए जरा, उस मस्जिद को बाबर ने नहीं बनाया था, बल्कि बाबर के एक सिपा सलार ने जो गवर्नर थे फैजाबाद में, उन्होंने बाबर के नाम पर बनाया था। रतन शारदा, मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूँ। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई 1949 से पहले मंदिरों को तोड़ के बनाया था। बताइए आप, रिकॉर्ड है, वहां के रिकॉर्ड है। मैं नहीं कह रहा, वहां का इतिहास का रिकॉर्ड कर रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है। आप यहाँ पर मूर्ति रखी गई, भाषा मत दीजिए। में मुगल चले गए, अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है जो मेन यहाँ से जो जब जजमेंट आया, आप पढ़ लीजिए उसको। पढ़ते लिखते नहीं है, सिर्फ किताबें रखने से कोई फायदा नहीं है। मेरे लैब में भी बहुत किताब है हमारे डिपार्टमेंट में, मैं भी पढ़ता हूँ और यहाँ पढ़ी रहा हूँ ये सारी किताबें, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है रतन शारदा जी, आप इस बात को समझिए। अभी आपने दलितों के एट्रोसिटीज पे गिनाया, क्या ऊना में जो कुछ हुआ आपको याद नहीं है? गुना में जो आपने किया वो याद नहीं है? आज भी दलितों को मंदिर जाने की इजाजत नहीं है, वो याद नहीं रहता? शादी में घोड़ी नहीं चढ़ सकता दलित, आप ही लोग मारते हैं उसको। यहाँ से रोज खबरें आती हैं, ये आप नहीं गिनवाते हैं। अरे दलितों को तो स्तन ढकने का अधिकार नहीं था केरला के अंदर, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ने उनको अधिकार दिलवाया। जाके इतिहास पढ़िए और ये किताब भी पढ़िएगा जरा, वरना मैं भेज दूंगा। तीसरी बात ये है कि ओवैसी साहब एक राजनीतिक पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनका अधिकार है यहाँ से उत्तर प्रदेश में आना और
चुनाव लड़ना। आप कौन होते हैं उनको रोकने के लिए? आप मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ सकते हैं, मंदिर के नाम पे आपकी राजनीति, आपकी पार्टी ही तो राइट विंग है सर। सेकुलरिज्म की बात ही आप मत कीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। तो आप मंदिर के नाम पर राजनीति करें तो बहुत अच्छा, वोट मांगे तो बहुत अच्छा। नहीं, आप मंदिर के नाम पर, शहजाद पूनावाला ये कहते हैं आप मंदिर के नाम पर राजनीति करें तो बहुत अच्छा और हमने मस्जिद का नाम ले लिया तो बहुत गलत। मैं ये पूछ रही हूँ, सवाल उठाने वाले भी तो यही लोग हैं। जब मंदिर की बात होती है तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं कि ये इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अलाउड नहीं है, किसी इलेक्शन के कोड में अलाउड नहीं है। लेकिन अगर ये कम्युनल हेट्रेड बढ़ाएं और हार्मनी को डिस्टर्ब करें फिर से गड़े मुर्दे उखाड़कर, तो वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, क्योंकि इन्हें तो इजाजत है हर चीज की, क्योंकि ये माइनॉरिटी है। शहजाद पूनावाला, दिक्कत क्या है जी आपको? देखिए नाविका जी, जो है बाबर की वैचारिक संतान, वो निश्चित है आज बहुत परेशान, इसलिए अयोध्या जाकर बनेंगे भड़काऊ भाईजान। ये हूबहू है तालिबान के बिरादरान और ये चाहते हैं कि वोट बैंक की चले इनकी दुकान, इसीलिए ये झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। के मोहम्मद की एएसआई की रिपोर्ट को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि वहां पर बाबरी तथाकथित ढांचा वेकेंट लैंड पर नहीं बना था, वो एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर पर बना था। अभी मई 2020 में भी आपको याद होगा टाइम्स नाउ पर पहले ब्रेक हुआ था कि किस तरीके से वहां पर टेम्पल के अवशेष और शिवलिंग वगैरह मिले थे। तो क्या असीम वक्कर ये कहना चाहते हैं कि वो मस्जिद में शिवलिंग रखकर पूजा पाठ करते थे? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब वहां पर मंदिर ही था, और वो मंदिर बाबर के सिपाही ने बनाया, किसने भी, मस्जिद जिसने भी बनाया। सवाल तो ये बनता है कि उन्होंने मंदिर को तोड़कर बनाया। एक सेकेंड, मैंने बीच में किसी के नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला भाई, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। ये आप लोगों को बाबर को, तालिबान को डिफेंड करने में इतनी उत्सुकता क्यों रहती है? बाबर और तालिबान के डिफेंस में बार बार क्यों आ जाते हैं? श्री राम आपके आदर्श है, बाबर है। श्री राम आपके आदर्श है, बाबर है। चुप बैठो, चुप बैठो, आप एकदम चुप बैठो। श्री राम के आदर्श, श्री राम आपके आदर्श है या बाबर आपके आदर्श है? चुप बैठो। अब शोएब जमाई, आपके आदर्श बाबर है, आइडलाइज बाबर, आप बाबर और औरंगजेब की संतान है। अब सुन लीजिए प्लीज शोएब जमाई, मैंने आपकी बात में बीच में नहीं बोला। आप डॉक्टर है, डॉक्टर की तरफ पेश भी आइए, आप कभी डॉक्टर की तरफ पेश भी आइए, ऐसा ना लगे काबुल से पकड़ कर लाए आपको। अब सुन लीजिए, नाविका जी मैं 30 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। नाविका जी मैं 30 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। ये प्लीज इनको बोलो कि ये अपनी जुबानी AK-47 को 2 मिनट के लिए रोक ले, जुबानी AK-47 पर लगाम लगाओ। अब मैं ये कह रहा हूं नाविका जी, ये एक लौते थोड़ी है ओवैसी भड़काऊ भाईजान, ये भड़काऊ भाईजान की पूरी लाइन लगी हुई है। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? मुझे गर्व है मैंने कार सेवकों को मारा। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक लटकाया, अटकाया, भटकाया राम मंदिर को। उन्होंने तो राम जी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो ये बार बार एंटी राम मंदिर लॉबी। आज एक चीज बोलिए, ये जिस तरीके से हिंदू के सबसे पवित्र स्थल को डिलेजिटिमाइज कर रहे हैं, कल इसको ये भड़काऊ भाईजान चाहते हैं कि इस पर हमला हो। क्या ये उकसा रहे हैं किसी तालिबानी माइंडेड लोगों को कि जाकर उस पर हमला कर दे? क्या ऐसी चीज वेटिकन या मक्का के बारे में बोली जा सकती है नाविका? माफ कीजिएगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा और बोलना भी नहीं चाहिए कि आप किसी और कौम के लोगों को उकसाए, पर ये उकसाने की राजनीति की जा रही है। मैं पूछना चाहती हूं सज्जन सिंह जी से। सज्जन सिंह जी, अभी 6 महीने 5 महीने बाकी हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन सज्जन सिंह जी अभी 6 महीने बाकी हैं। मैं सवाल ये उठा रही हूं कि ओवैसी जी अगर कहें, और ओवैसी जी की तमाम ऐसे वक्तव्य हैं, कभी कहते हैं अक्यूज्ड वर इन फैक्ट ट्राइंग टू सेव द स्ट्रक्चर, कभी वो कहते हैं कि हिंदू माइंड्स वर रिग्ड, दैट इज व्हाई दे वोटेड फॉर बीजेपी। तो ये कहें तो वो कम्युनल नहीं होता, ये कहें तो वो सेक्युलर ऑब्जर्वेशंस होती हैं और इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। लेकिन अगर बीजेपी बात करें मंदिर की, तो इन्हें लगेगा कि हाय मंदिर के नाम पर ये वोट ले रहे हैं, ये तो कम्युनल एजेंडा है। ये कम्युनल और सेक्युलर की डेफिनेशन क्या है? क्या ये तय करने वाले ओवैसी साहब हैं? ओवैसी क्या बोलते हैं? व्हाट एवर ओवैसी से वी आर लिस्ट बॉदर अबाउट दैट नाविका जी। हमें बॉदर नहीं करना है कि ओवैसी जी क्या बोल रहे हैं। ओवैसी इज ए गाइडेड मिसाइल फॉर द बीजेपी।
he will be landed exactly the place where the BJP want to land him. अरे अयोध्या में जो गए हैं ओवैसी साहब वो कह रहे हैं हम अयोध्या नहीं फैजाबाद जा रहे हैं। ये तो डिवाइड कर लिया इन्होंने, तुम अयोध्या बोलो हम फैजाबाद बोलेंगे। ये जो डिवाइडिंग पॉलिटिक्स है ओवैसी का, और ओवैसी है कौन है, एमआईएम कौन है, आरएसएस पार्ट 2 है, आरएसएस पार्ट 1 बीजेपी, आरएसएस पार्ट 2 ओवैसी। इसी में यही तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो फिर आप आरएसएस को हार्डलाइन हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं? अगर वो ओवैसी से इतने अच्छे संबंध हैं उनके, तो उनको हार्डलाइन हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन आप क्यों कहते हैं? आपकी समझ में गलत है या आप देश को गुमराह कर रहे हैं? तो हम ओवैसी की आरती थोड़ी उतारते हैं, हम ओवैसी भी तो हार्डलाइन है, ओवैसी भी तो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। तो हार्डलाइन हिंदू और हार्डलाइन मुस्लिम एक ही बात होती है। उतारना भी नहीं चाहिए, उतारने लायक भी नहीं है। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। और नहीं, नाविका इनसे पूछिए। नहीं, नाविका ये कह रहे हैं कि ओवैसी गाइडेड मिसगाइडेड मिसाइल है, तो इनसे पूछिए कि ओवैसी ने कहा है मस्जिद है, थी और रहेगी, क्या इस बात को खंडन करते हैं? क्या वो कहते हैं कि नहीं मंदिर था, है और रहेगा? ये एसपी सिंह जो भी है इनका नाम, मंदिर था, है और रहेगा, कह दीजिए आप। ओवैसी आपकी भाषा बोलते हैं, ओवैसी हमारी भाषा मंदिर था, है और रहेगा। मैं भारत का मुसलमान मानता हूँ, श्री राम मंदिर था, है रहेगा। आप नहीं बोल सकते, कुछ बोलते हैं ओवैसी के खिलाफ में बोल दीजिए ना। तो भले मुसलमान बोलते नहीं थे, हिंदू जरूर बीजेपी को बोलते था। यही तो पोलराइजेशन चाहते हैं, यही तो पोलराइजेशन शहजाद, यही तो पोलराइजेशन चाहते हैं। ओवैसी आपका पैदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के तहत बना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मंदिर था, है रहेगा। इमाम हिंद को पॉलिटिक्स टेक अ स्टैंड सर, मत बनो इस तरीके के वोट बैंक के चक्कर में। शहजाद पूनावाला ने आपसे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा है। ही इज बेसिकली आस्किंग यू, डू यू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाज पेन्ड बाय बी.आर. अंबेडकर जी? और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानते हैं? और अगर आप मानते हैं तो आज जो ओवैसी ने कहा उसको गलत कह दीजिए कि ओवैसी जो कह रहा है गलत है। वी आर बाउंड टू दैट। और ओवैसी का मैं विरोध थोड़ी होल्ड कर रहा हूँ। ओवैसी क्या कर रहे हैं, ओवैसी जाने, ओवैसी जो कहना चाह रहे हैं वो बीजेपी कहलवाना चाह रही है। दैट इज द रियल, दैट इज द रियल गली से क्यों असीम बकार साहब, आप पर इल्जाम है कि आप बीजेपी के टीम बी हैं और आरएसएस पार्ट 2 हैं। जवाब दीजिए सज्जन सिंह को। मंदिर वालों के आप भाई हैं, चचेरे हैं, ममेरे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मंदिर वालों के भाई हैं, ये आप पे इल्जाम है। ये जाने है। नहीं, देखिए मसला ये है, इल्जाम नहीं, फैक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं कि ये इतने काबिल आदमी हैं जिनका मैं जवाब देते हुए खुद ही शर्माए जा रहा हूं। इनके हिसाब से 4 लोग आए, तुम्हें शर्म भी नहीं आई बीजेपी से, इनके मकान पे कब्जा किया, इनके 2 झापड़ मारे, इनको निकाल दिया। पंचिंग बैग। अब इनके हिसाब से अगर ये अपने मकान पे कब्जा करने वालों का विरोध करेंगे तो ये कह रहे हैं कि ये उसके एजेंट हो जाएंगे, जिसने इनके मकान पे कब्जा किया इनको बाहर निकाला। इनके हिसाब से जिसने इनके मकान पे कब्जा किया है उसको मकान चुपचाप दे दें और उसको सलाम करें और सरेंडर करके चले जाएं। नहीं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? सरेंडर दे दें, मतलब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की मुखालफत करेंगे? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की आप मुखालफत करेंगे? आज मैं एक शर्त हार गया। एक साहब से मेरी एक शर्त लगी। आज मैं जब टाइम्स नाउ पे आ रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि नाविका कुमार बीजेपी वालों को बोलने की परमिशन देंगी और आपके बीच में 1 मिनट भी नहीं बोलने देंगी, टोकती रहेंगी। कमाल है। नहीं, ऐसा नाविका मैंने ओपन डिबेट आपसे ओपन करी है डिबेट। 3 मिनट का समय आपको दिया है, आपको फिर भी दर्द। मैडम सुनिए, आपको सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिख जाता है, आपको फिर भी दर्द। सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ये मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वो नॉन इस्लामिक था। आप कहते हैं गुमराह करते हैं, लोगों को बताते हैं वहां मंदिर थी नहीं।
असीम बकार जी, आप समझ रहे हैं कि आप मेरे बारे में कुछ स्क्रीन पर कहेंगे तो शायद आप अपना विक्टिम कार्ड एक बार और खेल पाएंगे, लेकिन देश और दुनिया समझ रही है कि आपको बोलने का पूरा समय मिल रहा है, पूरा वक्त मिल रहा है, लेकिन आप गुमराह कर रहे हैं। मैं नहीं गुमराह कर रहे किसी को। 4-5 मिनट तक रतन शारदा बोले, 4-5 मिनट तक उनको नॉन स्टॉप भाषण देने दिया, लेकिन जब असीम बकार बोलेंगे तो आप 15-20 सेकंड के बाद कट कैंची लिए बैठी हुई हैं। तो आप गलत बात बोलेंगे तो मैं आपको देने दूं। ये रैली हो रही है, ये रैली हो रही है। रैली तो ओवैसी साहब की 7 तारीख को है ना, आज तो 3 ही तारीख हुई है। आज रैली नहीं है मैडम, आज अयोध्या की रैली नहीं है भाई साहब। देखिए नाविका जी, आपसे कह रहा हूं, आपने कहा 1510 तक वहां मंदिर था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है कि सन 1200 से 1528 तक इस बात का प्रमाण ही नहीं है कि वहां जमीन के ऊपर कुछ था। अब मैं फिर कहूंगा कि आपकी बात माने, मुझे नहीं पता कि आप डिसेंटिंग जज की जजमेंट पढ़ रहे हैं या आप मेजॉरिटी जजमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको गुमराह करना है तो आप कोई भी जजमेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन राकेश सिन्हा जी आपका जवाब दे रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, देखिए मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी ओवैसी ने, आपने ठीक कहा, जब बाबरी मस्जिद का पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं तब तो वो सेकुलर हो गए एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग दी एडवांस स्टेज ऑफ सेकुलरिज्म। लेकिन सपोज मैं आज कहूं कि काशी विश्वनाथ और मथुरा में जो मंदिर है उस पर मस्जिद बना दिया गया, तो टुमारो देयर वुड बी ह्यू एंड क्राई दैट नाउ बीजेपी आरएसएस इज रेजिंग द इशू ऑफ काशी एंड मथुरा। आई रिमेंबर दैट इन टाइम्स ऑफ इंडिया अरुण शौरी वाज executive editor. He wrote a piece on front page about the Mathura, and next day 25 so-called Marxist historians, those who were the agents of the Babri Mosque litigation, they wrote a letter against Arun Shourie that he is spreading communalism. Question is that it's not only Ram temple. We are not raising other issues. 3,000 temples we have were destroyed by these aggressors. This land belongs to the Hindus. This land belongs to the Hindus. And I believe that those who are converted, their religion is different. Their mode of worship different. Their culture is not different. If they're differentiating on the question of culture, I bet that tomorrow they would defy the constitution. They are selectively obeying the secularism. Their secularism is a selective secularism. वकार साहब, मैं आपको अनइंटरप्टेड 60 सेकंड का टाइम दे रही हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरती हूं, लेकिन इसलिए कि अगर मुझे अनफेयर कहा जा रहा है तो मैं कम से कम देश के सामने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दूं कि मैं अनफेयर नहीं हूं। 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं, अब बोलिए। जी नहीं मैडम, कांग्रेस के बारे, अभी ये एमआईएम के बारे में राकेश सिन्हा जी ने स्टार्टिंग की, कासिम रिजवी को लेकर आए, आज़ादी से पहले का मामला था। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, कांग्रेस के लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी किसने बनाई? 3 फाउंडर मेंबर, सर विलियम वेडरबर्न, जॉन जर्डाइन, एलन अक्टवा ह्यूम। कांग्रेस पार्टी बनाई किसने? सब जानते हैं। किसको टेक ओवर की, किसने हैंड ओवर की, सब जानते हैं। आपको एमआईएम से तकलीफ? मैंने कोई भी ऐसा बात नहीं कही है जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में लिखी भी हो। कोई भी ऐसी बात, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। मैंने तो ये बोला कि आपने बोला कि 1510 तक मंदिर था, न्यायालय कह रहा है सन 1200 से 1528 तक जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं था। कहां से आप लेकर आई हैं? आई डोंट नो। मैं तो न्यायालय की बात को, जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला लिखा वो पढ़ रहा हूं। 60 सेकंड्स आपके 60 सेकंड्स मैंने इंटरप्ट नहीं किया। 60 सेकंड्स मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। आपने 60 सेकंड्स में अपनी बात रखी। अब इस बात के जवाब दो हाथ उठे हुए हैं। शहजाद पूनावाला पहले और रतन शारदा उसके बाद। शहजाद पूनावाला।
नहीं, मेरी बड़ी बात संक्षेप में मैं रखूंगा। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये लिखा है, वो लिखा है। एक सेकेंड, अब देखिए, बीच में मत बोलिए। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में ये लिखा है, वो लिखा है। चलिए, मैं आसिम वकार की बात को मान लेता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लिखा है, ऑर्डर में ये लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन फैसला है उसको तो मानो, कि जो अच्छा लगा उसको मान लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसको साइड कर लिया। अब कह रहे बाबरी है, रहेगी और जब तक रहूंगा मैं तब तक रहेगी। ये थोड़ी लिखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। दूसरी बात, इन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट या संविधान का कभी पालना की है? इन्होंने, ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये वही लोग है ना जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने बार बार भड़काने के लिए हैदराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक और बाकी जगहों पर ये बाबरी मस्जिद के अब कौन बीच में बोल रहा है? नाविका जी, अब देखिए कौन रतन शारदा जी, एक मिनट, रतन शारदा जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये नहीं कहता कि ये एक टाइटल डिस्प्यूट है, फेथ पे हम नहीं जा रहे, हमारा काम ये नहीं है कि हम जज करें यहां मंदिर था या मस्जिद था या क्या था। लेकिन फिर भी एक पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि जब बाबरी मस्जिद ढाई, उसके नीचे से जो स्ट्रक्चर निकला वो अन इस्लामिक था। तो उसका मतलब क्या हुआ रतन शारदा जी? और ये बात ओवैसी साहब और असीम वकार साहब को क्यों समझ नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे बार बार चर्चा हो चुकी है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन, दैट कीप ऑन सेइंग दिस वाज नॉट प्रूवन। If you go through the entire judgment, they have quoted the complete scientific evidence. They have quoted historical evidence, some of which you have already told. So to keep on hammering home that this was eternally a masjid, so what happened to the temple which was below the mosque? नहीं, रतन शारदा जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप नहीं बोलते ना, न्यायालय ने अपने आदेश में कहीं ये बात मानी ही नहीं है आप बीच में नहीं कि बोलते मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। इस बात को न्यायालय ने नहीं माना है। मस्जिद के नीचे वही बात हम भी कह रहे हैं, आप क्यों नहीं मानते? पहले से था, उसकी एज आपकी बाबरी से ज्यादा थी, वो हमने बनाई। तो आप ये सब मानते हैं, और अगर आप कहते हैं कि ये दावा गलत है तो काशी विश्वनाथ का दावा सही है, आपके रिकॉर्ड में सामने बना हुआ है। अब आप जहां पर जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि का सारा रिकॉर्ड सबके सामने, आंखों के सामने, वो छोड़ने को तैयार है आप 2.5 दिन का झोपड़ा छोड़ने को तैयार है। सबको बोलते हैं इस्लाम मस्जिद छोड़ने को तैयार है। ऐसे हजारों मस्जिदें छोड़ने को तैयार है क्या? ये हिंदुओं का बड़ा दिल है, वो केवल राम मंदिर के लिए लड़े क्योंकि उनकी अस्मिता का सवाल था। उसको भी आप बार बार अपमानित कर रहे हैं क्योंकि आपको बेसिकली आप अपने आपको आइडेंटिफाई करते हैं बाबर के साथ। लेकिन भारत की अपमानित करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हिंदू धर्म वाले अगर जरा सा कुछ कह दें मंदिर के बारे में और खासकर राम मंदिर के बारे में, तो पहला इल्जाम ये होता है कि ये कम्युनल सोच है और यही कम्युनल सोच पर आधारित पॉलिटिक्स है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट सिर्फ उनको मिलता है जो हिंदू धर्म वालों को हर्ट करते हैं? Why is it that when the Durga Ma statue is built, idol is built and put next to Durga Ma and actually prayed to, it is said that this is okay? Why do Hindu sentiments have no place in what is being defined as secular and secular axis of politics in this country? It's a question we'll have to address sooner than later. Thank you very much to all my panelists and ladies and gentlemen for joining me on debate number 1. Debate number 2, Sabka Saath, certified by Captain Amrinder Singh. Once again, Rahul Gandhi, where do you stand? That's the debate on the other side.